Presented to the Ladakh team. The first prize was presented to the Army team, the second prize to the Himachal team, and the third prize has been presented to the team from Ladakh. Three prizes for Himachal Pradesh team and third prize for Ladakh team. जोरदार तालियों से टीम भारत को याद करना। Thank you very much. Thanks a lot. It has really been a memorable moment. And we will do a better job. This prize goes to the Army team. सर यहाँ से थोड़ा सा। These are indeed memorable moments. Moments to be cherished for a long, long time. The second prize has been backed by the team of we now present a memento to Deputy Commissioner Baramulla, Minga Sherpa Sahib. DC Baramulla, will you please come forward to receive the memento from the Honorable Minister and Honorable Chief Minister. Baramulla. We now present a memento to Department of Tourism, Kashmir. We now present a memento to JNK Cable Car Corporation. I would request Managing Director Syed Kamal Sajjad to come forward to receive memento shows to competition venues. Shri Kamal Sajjad receiving memento. We now present a memento to Directorate of Health Services Kashmir for ensuring top-notch medical facilities and rapid emergency response to Officer Gulbarga Development Authority. The next moment has been presented to Chief Executive Officer, Gulbarga Development Authority for exceptional venue management and ensuring. The next moment has been presented to Directorate of Information and Public Relations, General Kashmir, Public Relations. Receiving memento from Dr. Mr. Ranvir and Shri Maratullah Sahib. The next memento has been presented to Power Development Department. We next present a memento to Jal Shakti Department. We have a friend from the Jal Shakti Department coming onto the stage to receive the memento for the department. It's been presented to the department for providing clean water supply across all venues, ensuring the comfort and hydration of athletes and officials for Jal Shakti Department. And the next memento will be presented to Mechanical Engineering Department, Tanwal, for efficient snow clearance and infrastructure maintenance. Public Works Department, R&B Division, Tanwal. Next memento for Public Works Department, R&B Division, Tanwal, for maintaining roads and ensuring safe transportation in challenging winter conditions. For their dedicated security arrangements and making the event a safe and enjoyable experience for everyone. Memento for JNK Police Baramulla. We now request SSP Traffic Rural, Shri Ravindra Singh, to come onto the stage to receive memento for ensuring smooth traffic management, facilitating seamless movement of participants and spectators. Memento for JNK Traffic Police Baramulla, being received by SSP Traffic Rural, Shri R.P. Singh. The next memento has been presented to Municipal Committee, Tanwal, for maintaining cleanliness and hygiene, ensuring a pristine and welcoming environment for the games. Memento for Municipal Committee, Tanwal. We next present memento to SDPO Tanwal. Memento for SDPO Tanwal for dedicated law enforcement support, ensuring a peaceful and well-organized event. Memento for SDPO Tanwal. The next memento is to be presented to High Altitude Warfare. अब जैसे मंत्री साहब ने गवर्नमेंट इंडिया के अपनी तकरीर में कहा, गुलमर्ग के लिए एक विंटर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो फैसला किया जा रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते थे कि अगर एक दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
स्पोर्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर में कायम हो तो उससे हमारे एथलीट्स को फ़ायदा होगा। मैं आर्मी, हिमाचल और लद्दाख को तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन अपनी जगह थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इस मुल्क में स्कीइंग की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, लेकिन पहले 3 नंबर में हमारा कहीं हिसाब किताब नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कोई खामी है। हमें अपने स्कीयर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचेस का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सतीश के साथ मिलके इस साल हम अपने स्कीयर्स के लिए फैसिलिटीज़ और कोचिंग वगैरह बेहतर करें, ताकि अगले साल जब छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हों तो पहले 3 में जम्मू कश्मीर मिले। वो आप नहीं कह सकते। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं, और जिस इंटेलिजेंस के बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं है। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक में कभी रहे नहीं, और वैसे भी अगर आप देखें तो फिलहाल जब से मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट से बाहर आए, उनके तरफ से तो जहाँ तक मैंने देखा कोई उल्टी सीधी बात हुई नहीं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस बुनियाद पे ये हुआ है वो जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन आगे जाके देख लेंगे क्या करना है। तो ये जो शो हुआ था इसके बारे में सभी क्योंकि है ही छोड़ दीजिए ना, हो गया। बीजेपी बोल रही है ये उमर साहब के रिलेटिव्स का होटल है मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज से इनकार करता हूँ। यहाँ 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। लेकिन ऐसे जो बयान मैंने असेंबली में दिया उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहीं पे कानून के खिलाफ कोई बात हुई है तो एक्शन ली जाएगी। और कुछ लियाकत अली है। मैं इस वक्त यहाँ पर हम लद्दाख स्कीइंग माउंटेनियरिंग टीम को रिप्रेजेंट करने आए थे। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज के हमारे प्लेस है, नॉर्डिक, अल्पाइन, स्कीइंग माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग के। तो बाकी ओवरऑल जो इस खेलो इंडिया के कुछ इवेंट्स लद्दाख के अंदर भी हुए थे, जैसे आइस हॉकी का जो इवेंट्स वगैरह वो इस साल लेह में हुए थे। तो ओवरऑल हमारी लद्दाख ने इस बार जो 5th एडिशन के अंदर 4 गोल्ड हासिल किए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट गेम्स पे। तो हमें खुशी है कि हमारे लद्दाख ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ओवरऑल 5th एडिशन के अंदर। तो जिस तरह का यहाँ का जो एकोमोडेशन वगैरह था वो गुलमर्ग के अंदर बहुत ज़बरदस्त था। अंचल ठाकुर है। क्या फील कर रहे हो आपने आज दूसरी पोजीशन हासिल की? बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल टीम ने आज ओवरऑल 2nd पोजीशन लाई है। हमारी टीम बहुत खुश है, सबने बहुत मेहनत की थी खेलो इंडिया के लिए। और मेरा जो इवेंट था वो अल्पाइन स्कीइंग था, जायंट स्लालम और स्लालम। उसमें दोनों में मैंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी HP टीम के मेंबर्स बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो इससे पहले भी आप यहाँ पे आए? जी, ये मेरा 3रा खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। क्या एक्सपीरियंस रही आपको यहाँ पे? हमेशा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के स्लोप्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चेयर लिफ्ट्स यहाँ पर हैं, बिटर मशीन्स है, तो एथलीट्स के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने यहाँ पे अच्छा इंतजाम किया है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, चाहे वो अकोमोडेशन को लेकर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को, चाहे स्लोप्स पे हम एथलीट्स के लिए बीच रेसेस में हमें रिफ्रेशमेंट लंच प्रोवाइड कर रहे थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरा नाम सुनील है। मैं इंडियन आर्मी को टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हम यहाँ पे हौज़ में रहते, अभी सारी टीम हमारी हौज़ में रहती है। पिछले काफ़ी टाइम से हम इसके लिए मेहनत करते, कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। ये ट्रॉफ़ी के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एथलीट की, उसके पीछे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोचेस हैं, उसके सपोर्टिंग स्टाफ जितना भी है, काफ़ी उनकी भी मेहनत पीछे बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे हमारे जो कोचेस हैं वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे हौज़ की टीम है जो हमारी, वो भी, उसका भी काफ़ी बहुत बड़ा हाथ है इस ट्रॉफ़ी के लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ उनका भी, जिन्होंने हमारे इतना साथ दिया कि हम इस ट्रॉफ़ी के लायक हुए। सो थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम